یہ جو ہمارے ہاتھ میں بائبل مقدس ہے اس میں 66 بکس ہیں. کتنی ہیں؟ 39 پرانے عہد نامے میں ہیں اور 27 نئے عہد نامے میں. اور اس پوری بائبل کو سمجھنے کے لیے اگر کسی نے دا بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب نہیں پڑھی تو وہ پوری بائبل کو سمجھ نہیں سکتے. پوری بائبل کو سمجھ آپ نے ہم سب پاکستانی ہیں. آپ کو معلوم ہے پنیری جب ہم چاول کی فصل بوتے ہیں دھان کی فصل بوتے ہیں تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں ایک جگہ میں پنیری لگاتے ہیں پھر وہ پنیری کو اکھاڑتے ہیں اور پھر پورے کھیت میں پیدائش کی کتاب سمجھ لیں کہ پنیری کی کتاب ہے. پوری بائبل میں اسی سے آگے ڈیولپمنٹ چلتی ہے اسی سے آگے ذکر چلتا ہے مکاشفہ تک. تو پیدائش کی کتاب جس نے نہیں پڑھی وہ پوری بائبل کو سمجھنے سے قاصر ہے. پوری بائبل کو سمجھنے سے کیونکہ بنیاد میں جب ہم بنیادی طور پر ہم نے نہیں دیکھا نہیں پڑھا تو آگے جا کے ہم کیسے اس کو سمجھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں. تو پیدائش کی کتاب میں سے آج ہم ایک حوالہ دیکھیں گے اور یہ ہے پیدائش 39واں باب. انتالیسواں باب ہے. بیچ بیچ میں سے ہم آیات پڑھیں گے ساری آیات نہیں پڑھ سکتے ہیں اس وقت. 39واں باب دوسری آیت کوئی بھی بھائی پڑھے اونچی آواز. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. شکریہ جی. پھر پڑھیں 21ویں آیت 39واں باب 21ویں آیت. لیکن خداوند یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروغہ کی نظر میں اسے مقبول بنایا. پھر 23ویں آیت کوئی دوسرا پڑھے. اور قید خانہ کا دروغہ سب کاموں کی طرف سے جو اس کے ہاتھ میں تھے بے فکر تھا اس لیے کہ خداوند اس کے ساتھ تھا اور جو کچھ وہ کرتا خداوند اس میں اقبال مندی بخشتا تھا. آمین. پاکلام کے پڑھے اور سمجھ جانے کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے. یہ 3 آیات ہم نے پڑھی بیچ بیچ میں سے اٹھا کر. تینوں آیاتوں میں ایک بار بار نظر آئی. کیا ہے؟ خداوند اس کے ساتھ. خداوند یوسف کے ساتھ ہے. خداوند یوسف کے تینوں آیتوں میں یہ فکرہ رپیٹ کیا گیا دہرایا گیا ہے کہ خداوند یوسف کے ساتھ ہے. آج کا مضمون ہے خداوند یوسف کے ساتھ. خداوند یوسف کے ساتھ تھا تو پھر خداوند نے اس کا خدا اس کے ساتھ تھا تو اس کا ثبوت بھی تھا. کیا تھا اس کا ثبوت تھا. ثبوت ہے کہ نہیں؟ خداوند کچھ لوگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے کا جو ہیرو ہے وہ یوسف ہے. پرانے عہد نامے کا ہیرو یوسف ہے. اگر آپ آزمائش پر غالب آنا چاہتے ہیں تو لازمی بات ہے تو خداوند آپ کے ساتھ. ہاللیلویا. میں اور آپ اگر آزمائش پر غلبہ چاہتے ہیں فتح پانا چاہتے ہیں تو خدا کا ہمارے ساتھ ہونا لازمی. کیا آزمائش تھی اس کے اوپر؟ اس دنیا میں 4 تے ہیں. الف بے پے تے. تے سمجھنا چوتھا حرف ہے. 4 تے کہتے ہیں دنیا والے بہت خطرناک ہیں. دولت لاسٹ میں تے آتا ہے. شہرت, عزت اور
बात है, यही जिक्र है इसमें, मैंने पूरा हवाला नहीं पढ़ा। ये जो 4 ते हैं ना बहुत खतरनाक है। और एक ते का जिक्र है यूसुफ के साथ, पोतीफार की बीवी। पोतीफार की बीवी से कहती है, और ये भाग कि मेरे साथ क्या कर, बदी कर। ये ऐसा जवान है, बदी करने से डरता है। मेरी बात सुन रहे हैं? ये जवान है और बदी करने से डरता है। वो कहती होगी ये कैसा जवान है, ये भाग निकला है। आजमाइश बहुत बड़ी है, छोटी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। लेकिन हमने तीनों आयतों में पढ़ा है कि खुदावंद यूसुफ के साथ है। आजमाइश बड़ी हो सकती है, लेकिन वो आजमाइश मेरे और आपके खुदा से बड़ी नहीं हो सकती। खुदा ने उसे फजल बख्शा कि वो आजमाइश पर क्या करे, गलबा पाए, भाग जाए उस जगह से जहाँ पे एक जवान शख्स 17 से 20 साल की उम्र है और वो पल्लू छुड़ाकर भाग गया। कैसा जवान, खुदा उसके आजमाइश में, आजमाइश का आना गुनाह नहीं, आजमाइश में गिर जाना गुनाह। एक राइटर लिखता है, हम परिंदों को अपने सर से उड़ना तो नहीं मना कर सकते, हम परिंदों का अपने सर से उड़ना मना नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने सर पर घोंसले बनाने से मना कर सकते हैं। हम परिंदों को अपने सर पे घोंसला बनाने। अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है टेस्टिमोनी। क्या है टेस्टिमोनी? का मतलब है गवाही। क्या मतलब है? जब आप, और ये जो आजमाइश जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसको अंग्रेजी में टेस्ट भी कहते हैं, ट्रायल भी कहते हैं, टेम्पटेशन भी कहते हैं। और किसी ने लिखा है कि स्टैंड इन द टेस्ट। अगर आप आजमाइश में कायम रहते हो, दिस टेस्ट विल बिकम योर टेस्टिमोनी। अगर आप आजमाइश में, टेस्ट में कायम रहते हो, तो यही टेस्ट आपकी टेस्टिमोनी बन जाती है, आपकी गवाही बन जाती है। और यूसुफ की गवाही बन गई, वो पल्लू छुड़ाकर भाग गया। आजमाइश है। इस दुनिया में जो भी शख्स पैदा हुआ है वो गुनाह से मुबर्रा नहीं है और वो आजमाइश से मुबर्रा, उस पर आजमाइश और दिन आती है। वो जिस्मानी है, वो दौलत की है, वो शोहरत की है, वो औरत की है, कुछ भी है, कोई शख्स से बचा। कभी कोई खुदा भी हमें आजमाता है। खुदा ने इब्राहिम को आजमाया, वो इम्तिहान में पास हो गए। आजमाने का क्या मतलब है? टेस्ट करना, इम्तिहान लेना। खुदा ने इब्राहिम का टेस्ट लिया, वो पास हो गया। जब हम स्कूल और कॉलेज में थे तो हमारा टीचर क्या करता है? टेस्ट लेता है। क्या करता है? टेस्ट लेता है, चेक करता है इन्होंने कुछ सीखा है कि नहीं सीखा, जो मैंने पढ़ाया था याद किया कि वो चेक करता है कितने पानी में सीखा। खुदा ने इब्राहिम को टेस्ट किया, आजमाया, वो पास हो गया। खुदा ने यूसुफ को आजमाया, यूसुफ भी पास। अच्छा, खुदा ने दानियल को भी आजमाया, उसके आगे भी एक आजमाइश थी, ठीक है नहीं? आजमाइश आई, उसने कहा मैं अपने आप को इस शाही खाने से नापाक नहीं। एक बड़ी मज़ेदार बात है, बाबरकत बात है, जो खुदा ने मेरे ज़हन में मुझे रिमाइंड करवा दिया। कहते हैं जब दानियल ने इनकार किया तो उसकी उम्र 17 साल थी, शाही खुराक खाने से। कितने साल थी? 17 साल। अंग्रेजी में 17 को क्या कहते हैं? 17। क्या कहते हैं? 17। और जब उसे शेरों की मांद में डाला गया, उस वक्त उसकी उम्र 70 साल थी। कितनी साल थी? 70 साल। कहते हैं एट द एज ऑफ 17, 17 साल की उम्र में
At the age of 17, Daniel denied to eat royal food. 17 साल की उम्र में दानियल ने शाही खुराक खाने से इनकार किया. At the age of 70, the lions denied to eat Daniel. 70 साल की उम्र में शेरों ने दानियल को खाने से इनकार कर दिया. हालेलुया। और खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए. उन्होंने उसे कुछ जरूरत ना दानियल भी पास हो गया. दानियल भी पास हो गया। यूसुफ भी. खुदा इनके लोगों के क्या था? साथ। आजमाइश में गलमा चाहते हैं, जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, जिंदगी में कामरानी चाहते हैं, तो अगर खुदा साथ नहीं है तो फिर हार है, पास है, फिर फेल है. सदरक और मिसक और अबदनजो को उन्होंने कहा, है बादशाह, इस समर में हम तुझे कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझ। हमारा खुदा है जिसकी हम इबादत करते तुझे जवाब दिया, डाल दिया. आजमाइश में काम रहेंगे. स्टैंड इन द टेस्ट एंड इट विल बिकम योर टेस्टिमनी. आप आजमाइश में कायम रहेंगे, आप टेस्ट में कायम रहेंगे, तो यही टेस्ट आपकी टेस्टिमनी बन जाएगी. और ये खुदा ये लोगों की टेस्टिमनी बनी और कलाम मुक़द्दस में लिखी गई. हम जवान हैं, सबसे ज़्यादा आजमाइश तो यही एज में आती है. हमारा क्या है, पास होते हैं या फेल होते हैं? आजमाइश पर गलब आने का एक ही नुस्खा है, कि फार्मूला है. अगर खुदा मेरे साथ है, आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिर जाना गुनाह. खुदा के लोगों को हम देख, वो इस दुनिया में थे, लेकिन उन्होंने इस दुनिया में रहकर दुनिया जैसे काम नहीं किए, क्योंकि खुदा ने उन्हें चुनकर अलग कर. ज़बूर 4 का मसला क्या कहता है? जान रखो कि खुदा ने दीनदार को अपने लिए अगर मुझे अलग कर दिया, अगर मैंने तौबा कर ली, मसीह पर ईमान ले आया, बपतिस्मा ले लिया, तो मेरा अलग होना किधर गया? काम तो वैसे ही रहे. मेरी गवाही किधर गई? ना मेरे तौबा करने का पता, ना मेरे बपतिस्मा लेने का पता, ना कुछ फ़र्क पड़ा, ना कुछ तब्दीली वाक़. मैं पहले भी नामी में मसीही था, अब भी नामी में कुछ भी फ़र्क है. आजमाइश आई. आजमाइश का एक ही फार्मूला है कि मसीह अगर मेरे और आपके साथ है, तो फिर फतह किसकी है? मेरी. क्योंकि मसीह फाते है, मसीह को आजमाया गया. उसने कहा शैतान दूर हो, क्योंकि कलाम में लिखा कि खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर. कलाम हमारी मदद करता, खुदा का रूह हमारी मदद करता. अगर खुदा हमारे साथ तो फिर हम आजमाइश में क्या करेंगे? पास हो जाएंगे. अगर खुदा साथ नहीं है तो पहले टेस्ट में हमें आजमाइश का आना गुनाह नहीं है, आजमाइश में गिर जाना है गुनाह. याद रखें, आजमाइश का कितनी भी खतरनाक और ज़बरदस्त क्यों ना हो, यीशु मसीह से बड़ी मेरा यीशु मसीह सब पर क्या करता है? इख्तियार है, कुदरत रखता है, और उसके कहने से ऐसे करके हालात बदल जाते हैं. आजमाइश कितनी भी बड़ी हो, गुनाह, हम आजमाइश पर गलबा पा सकते हैं अगर हम मसीह हमारे साथ. यकूब के खत के 4 बाब में क्या लिखा है? पढ़ेंगे 4 बाब साथ में, फिर हम ख़त्म करेंगे. यकूब 4:7. बस खुदाम के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, हाँ जी. तो वो तुमसे भाग जाएगा. बस खुदा के ताबे हो जाओ, और अगर खुदा के ताबे ना हो और इब्लीस का मुकाबला करें तो क्या होगा? फिर हम भाग जाएंगे. फिर इब्लीस नहीं भागेगा, फिर हम भाग जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ ताकत नहीं होगी, कुव्वत नहीं होगी. हम चाहते हैं कि आजमाइश में गलबा है. तो कलाम में हमने 3 आयतों में पढ़ा था, खुदा यूसुफ के साथ. ऐसे ही वो आजमाइश पे गलबा आ गया था, क्योंकि खुदा उसके साथ. अगर खुदा मेरे और आपके साथ है तो हम आजमाइश पर हम इब्लीस का मुकाबला करेंगे, और इब्लीस खुदा के ताबे हैं. इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को खुदा के ताबे किया, यस. और इन्होंने अपने दिलों में खुदा को बसने दिया, खुदा की सुकूनत
ان کا دل بنا، ان کا دل خدا کی سکونت کا بنا، اس لیے ابلیس ان سے اور بادشاہوں کو منہ کی کھانی تھی۔ اس نے کہا صدرک اور مصرق اور ابدنجو کا خدا، دانیل کا خدا مبارک ہو جس نے شیروں کے منہ بند کر دیا۔ یہ گواہی جو غیر قوموں کے بادشاہوں نے، یہ بھی گر جاتے، فیل ہو جاتے، ان کا بھی نام و نشان آج بائبل میں ان کا ذکر نہ ملتا۔ آج اگر آپ قائم رہیں گے، آخری بات، آج میں اور آپ اگر آزمائش میں قائم رہیں، یہ لوگ آزمائشوں میں قائم رہیں، ان کے نام کتاب مقدس میں ملتے ہیں۔ میں اور آپ اگر آزمائش پر قائم رہتے ہیں، مسیح سے قوت حاصل کر کے، مسیح سے غلبہ حاصل کر کے، مسیح کے ساتھ اپنا تعلق اور واسطہ جوڑ کر فتح حاصل کرتے ہیں، تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے نام برے کی کتاب حیات میں لکھی۔